हाँ. Hey, hello students, how are you? What are you doing at home? Just eating or sleeping or doing any amazing adventures like reading, dancing, singing or indoor sporting? Due to pandemic COVID-19, CB School is planning to give some demo lectures of upcoming classes to be in touch with your regular studies. So students, stay at home and stay safe. First, we are going to see our first demo lecture of science. In this, our first chapter in the science subject will be crop production and management. What do you mean by crop production and its management? When a farmer used to cultivate a huge amount of plant in a particular field, then that plant is called as crop, and cultivation of that plant in a respective field is known as crop production. In this chapter, we are going to see three factors: how we have to produce the crop, how we have to manage the production, and at last, how we have to distribute it. In this chapter, we are having two girls. One is Paheli and one is Bujo. Here आप देख रहे Paheli and Bujo. So they both of them went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle was a farmer. They saw their खुरपी. खुरपी आप देखते हो कि ना खेतों में यूज में लाया जाता है. In the same way, sickle, shovels, plow. इसे हम ये भी कहते हैं. कोई फावड़ा, नांगर नांगर. ये जो चीजें हैं ये हमें फील्ड कल्टीवेशन में यूज में लाया करते हैं. तो उन बच्चों को ये देखना था कि फॉर व्हाट पर्पस वी यूज दिस टूल एंड वेयर. सो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ऑल द लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म इन अ वर्ल्ड. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो उसमें प्लांट भी आता है, ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं. सो दिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंडेंट ऑन फूड. And as we know, food is cultivated by plant by the method of photosynthesis, because humans and animals are incapable to produce the food. So if we have to focus on this chapter, first we have to eat just a healthy food. तो हमारी एनर्जी आएगी अच्छी तरह से और फोकस के लिए हम ये चैप्टर पढ़ सकेंगे. So why do we need food? A question raised in our mind. So a human body or animal body or an organism body does various kinds of function, various kinds of body function or body of activities. They are, see here, digestion, respiration and excretion. Digestion means whatever the food we have consumed, the food must be digest, पचन क्रिया होनी चाहिए. रेस्पिरेशन, श्वास लेना छोड़ना होना चाहिए. एक्सक्रीशन, जो कुछ खाते पीते हैं उसमें से अनवांटेड चीज बाहर निकलनी चाहिए. इवन पसीना भी एक्सक्रीशन में आता है. सो फॉर ऑल दिस बॉडी एक्टिविटीज वी नीड फूड. अभी ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है. अगर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, मैन, ह्यूमन, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो ऑल दे नीड फूड टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी. तो ये फूड कहाँ से कल्टिवेट होता है? कुछ तो भी उसके लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए. यस, दिस क्वेश्चन रेज इन द माइंड ऑफ बुर्जो. अगर इतने सारे लार्ज पॉपुलेशन को हमें जिंदा रखना है तो कोई तो भी फूड लगने वाला है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लार्ज पॉपुलेशन के लिए फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, इट इज रेगुलर प्रोडक्शन. ये देखो, रेगुलर कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ द फूड, कंटिन्यू. देन इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट. अगर फूड प्रोड्यूस भी हो रहा है उसे प्रॉपरली मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. तो दिस ऑल थ्री फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल for the distribution of a food on large scale area. Here we are seeing a dialog box.
yellow color dialog box. It is here it is given that agricultural practices. What do you mean by agricultural practices? Yes, student. The work done in the agricultural field to produce some crop is known as agricultural practices. सो हजारों साल पहले इन्होंने बताया, 10,000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्हें क्या कहा जाता था? दे आर कॉल्ड एज नोमैड। और वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फूड और शेल्टर के लिए वंडर या भटकते रहते थे। और वो क्या करते थे? उस समय में कच्चा खाना खाते थे, कच्चे फल खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, और इवन दे यूज टू हंट एनिमल्स फॉर फूड। जानवरों को भी मार के वो खाते थे। धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आया कि दे हैव टू कल्टीवेट लैंड, and after cultivating land they will get some type of food material out of it. So they started cultivating plant. For an example, they started cultivating wheat and other crops, and thus उसी के साथ एग्रीकल्चर ये जो ऑक्यूपेशन ये स्टार्ट हुआ। सो हमारी जो इंडिया है यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर। अभी when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। मैंने पहले भी बताया कि एक प्रकार का कोई प्लांट अगर कोई खेती में ग्रो किया जाता है, सपोज आई एम हैविंग अ फील्ड ऑफ 10 एकर्स, 10 एकड़ की मेरे पास जमीन है और वहां मैं गेहूं ग्रो कर रही हूँ। सो उसे मैं प्लांट नहीं कहूंगी, उसे मैं क्या कहूंगी? क्रॉप। The large number of only one plant cultivated in a respective place, so it is called a crop. For an example, wheat। उसी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन में सीरियल्स कल्टीवेट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स कल्टीवेट कर सकते हैं, इवन फ्रूट्स भी कल्टीवेट कर सकते हैं। मैं अपनी ब्राइटनेस बढ़ा रही हूँ फोन की। ओके। और देखा जाए इंडिया ये वास्ट नेशन है, सबको ही पता है। यहाँ पर अलग अलग जगह पर, यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इन द डिफरेंट रीजन द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट। किस फैक्टर्स पे हम कहते हैं कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है? देखो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, यहाँ पर दिया गया है, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हम अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंडिया के बारे में, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा जाता है। लार्ज नंबर का एरिया है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें उगाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार का एटमॉस्फेयर है, अलग अलग प्रकार की बारिश होती है। यहाँ पर कहीं बर्फ गिरती है तो कहीं बहुत धूप होती है। तो इसे ध्यान में रख के क्या किया जाता है? तो इसे ध्यान में रख के किसान भाई अपनी खेती करता है। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू दिस फेवरेबल कंडीशन। तो क्या फेवरेबल कंडीशन ध्यान में देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर देखेंगे, नेक्स्ट ह्यूमिडिटी देखेंगे, एंड नेक्स्ट रेनफॉल देखेंगे। इतनी सारी चीजें अगर देखे बैठेंगे तो क्रॉप कल्टीवेशन आसान नहीं होगा। तभी भी वी आर प्रोड्यूसिंग क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ टू सीजन। Our first season is Kharif season and our second season is Rabi season. खरीफ सीजन में जो क्रॉप कल्टीवेट होते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है, एंड दोज क्रॉप विच आर कल्टीवेटेड इन रबी सीजन आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। अभी खरीफ सीजन में जो क्रॉप कल्टीवेट किए जाते हैं वो कौन से मंथ में किए जाते हैं? फ्रॉम द मंथ जून टू सितंबर। और इसमें क्या क्या ग्रो किया जाता है? फॉर एन एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, इस सबको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। इन द सेम वे रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर टू मार्च
मार्च में ग्रो किए जाते हैं और उन्हें रैबी क्रॉप भी कहा जाता है। और जो उसकी प्रोडक्शन है उसमें व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड, इसके अलावा बहुत सारे पल्सेस और वेजिटेबल्स भी समर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। तो हमने देखा कि भले ही हम इंडिया में क्या सोचते हैं, यहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल अलग अलग है, तभी भी हम दो प्रकार के क्रॉप ग्रो करते हैं, दो फेज में, एक खरीफ सीजन और अनदर इज रबी सीजन। तो बेसिक प्रैक्टिसेस डन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये भी देखना जरूरी है क्या क्या किया जाता है। एक सवाल दिमाग में आया ये कि पैडी जो क्रॉप है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो किया जाता। तो इसका सवाल जो है, जवाब जो है इस सवाल का, तो उसे पानी ज्यादा लगता है, इसीलिए पैडी क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन। अभी जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं हम, of crops involve several activities undertaken by farmer। अभी ये बता रहे फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो पैराग्राफ है शॉर्ट में बताती उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, कोई भी क्रॉप अगर कोई किसान कल्टीवेट कर रहा है, वो जो हम कल्टीवेट करते समय जो प्रैक्टिस या जो वर्किंग करने वाला है या जो करने वाला है, वही सेम मेथड हम अगर हमारे घर में, घर के आंगन में थोड़ी सी जगह हो, छोटी सी जगह हो, अगर वहाँ धनिया, मिर्ची, टमाटर वगैरह लगाया जाए या फ्लावर्स कल्टीवेट किए जाए, तो हम भी सेम वही टेक्निक यूज करेंगे। तो जगह बड़ी हो या छोटी हो, एक्टिविटी तो सेम ही है, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू कल्टीवेट समथिंग एंड द प्रोसेस शुड बी द सेम। तो क्या क्या हो सकती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, तो देयर आर सेवरल पॉइंट गिवन है। तो कोई भी क्रॉप अच्छी तरह से प्रोड्यूस होने के लिए हमें 7 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हमें सॉइल कैसी है, प्रिपेयर है कि नहीं कल्टीवेशन के लिए, वो देखना चाहिए। सोइंग मतलब बुआई, जो हम बीज वगैरह बोते वो देखना है कैसे बीज है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद वगैरह। इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू द रिस्पेक्टिव फील्ड। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अभी वीड्स जो ये है, वीड्स मतलब जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग, बाद में जो कोई क्रॉप है उसकी कटाई प्रॉपर होनी चाहिए, और सबका होने के बाद ये ध्यान में रखना चाहिए कि वॉट एवर द क्रॉप इज प्रोड्यूस, वी हैव टू स्टोर इट प्रॉपरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आवर फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू लुक हाउ द सॉइल इज। If the soil is fertile, it is humid, it contains several numbers of nutrients, then only our crop will be healthy, fit and fine, and our production will be on large scale। तो क्या देखना है हमें, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, हमें देखना है कि सॉइल अच्छी है कि नहीं। तो जो हमारी सॉइल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। सॉइल कल्टीवेट करने से क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम सॉइल को क्या किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम मशीनरी। क्यों किया जाता है, क्योंकि ऊपर की जो सतह होती है, अपर लेयर की जो सॉइल होती है, उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है, और मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द सॉइल। तो वो ऊपर आना जरूरी है, इसलिए मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है कोई इक्विपमेंट से, और उसी के कारण जो हमारी सॉइल है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। अगर कोई क्रॉप कल्टीवेट भी किया जाता है तो लूज सॉइल के कारण जो पेड़ पौधे आने वाले हैं या कल्टीवेट हम करने वाले हैं, उनकी रूट जो है इजीली नीचे तक जा सकती है, और नीचे इजीली जाने के मतलब मदद होने के कारण वो इजीली ब्रीथ मतलब रिस्पायर कर सकती है। तो क्या जरूरत है हमें मिट्टी को लूज करने के। तो हमने पहले चैप्टर में देखा ही होगा कि जो हमारी सॉइल है वो क्या करती
सॉइल में क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी के साथ जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, उसी के साथ अगर कोई जानवर या कोई पेड़ पौधे मर भी जाते हैं तो उन पे डिकम्पोजिशन एक्टिविटी प्ले होती है और उनमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंस होते हैं वो फिर से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो उसी के कारण सॉइल जो है अपना न्यूट्रिएंट्स रिगे मतलब फिर से पा लेती है। तो वो कहा जाता है इन द ग्राउंड लेवल ऑफ द सॉइल। तो वो न्यूट्रिएंट हमें फिर से ऊपर की सतह पे लाना है जिनके कारण हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। ये भी हमें पता होना चाहिए कि सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर मतलब ऊपर की जो सतह है कोई हद तक ही जो सॉइल है वो अच्छी तरह का न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को दे सकती है। इसलिए हमें सॉइल को क्या करना है, टर्निंग मतलब सॉइल की सतह को ऊपर नीचे करना है और मिट्टी को हमें लूज बनाना है। तो उसका फायदा क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो इक्वली हो जाएंगे अंडरग्राउंड लेवल पे भी और टॉप मोस्ट लेवल पे भी, और प्लांट्स जो है इजीली अपना न्यूट्रिशन ले ले। नेक्स्ट, अभी ये जो प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लोइंग। टिलिंग मतलब ऊपर नीचे करना, फ्लोइंग तो ये किससे किया जाता है, मैं आपको एक मराठी वर्ड बताती हूँ, नांगर। नांगर बोलतो ना हम क्रॉप कल्टिवेट करने के पहले किसान भाई कहते हैं नांगरणी करायची शेताची, चला नांगरायचे शेत। हाल ही में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ट्रैक्टर। तो पहले के समय में क्या किया जाता था, बुल्स यूज किए जाते थे, कैमल्स, हॉर्सेस, उनके हेल्प से फार्मर क्या करता था, जो सॉइल है उसकी टीलिंग या फ्लोइंग करता था। और ये टीलिंग और फ्लोइंग किसके हेल्प से किए जाती है, तो ये फ्लो के हेल्प से की जाती है। और वो किससे बना होता है, तो वुड और आयरन से। हमें पता होना चाहिए कि क्रॉप कल्टीवेट हो जाने के बाद बहुत समय के बाद ये जो हमारी सॉइल है वो सूख जाती है और उसे टिलिंग या फ्लोइंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, वाटरिंग करना पड़ता है। वाटरिंग करने के बाद हम टिलिंग करेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है कि सॉइल में बड़े बड़े क्लम्प्स, क्लम्प्स को क्या कहा जाता है, क्रम्प्स, वो आपण म्हणतात ना मातीचे ढेकळं, हाँ, तो उसे भी क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है या ब्रोक करना पड़ता है। तो इजीली पूरी लैंड जो है हमारी इक्वल होनी चाहिए कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करना है। तो उसके बाद लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग अगर करेंगे अच्छी तरह से तो हम प्रॉपर वे में कोई भी बीज सो करेंगे और प्रॉपर वे में इरिगेशन मतलब वाटरिंग कर सकते हैं। और लेवलिंग किसके हेल्प से की जाती है, विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो लेवलर करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बिग क्लम्प्स है वो ब्रोक करने पड़ेंगे क्रम्स में, और बाद में लेवलिंग करने पड़ेंगी। विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग हम इजीली सोइंग और इरिगेशन कर सकते हैं। तो कई टाइम पे ड्यूरिंग फ्लोइंग, ये मतलब फ्लोइंग करते समय कई किसान भाई साहब क्या करते हैं, दे यूज टू ऐड मैन्योर इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। तो इससे क्या हो जाता है, इट गेट प्रॉपर मिक्स विद द सॉइल, अच्छी तरह से वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और हमारी जो सॉइल है मॉइस्चर मतलब नमी रिगेन कर सकती है। अभी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट मतलब कौन कौन सी चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कौन सी चीज यूज में लाई जाती है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। कोई भी सीड सो करने से पहले हमें जो सॉइल के क्लम्प्स हैं उन्हें ब्रेक करना है। मैंने अभी बताया लास्ट पैराग्राफ में, सॉइल क्लम्प हैज टू बी ब्रेक डाउन। अगर सॉइल क्लम्प अच्छी तरह से ब्रेक डाउन होते हैं सो वी गेट बेटर यील्ड। बेटर यील्ड मतलब अच्छी लेवल का हमें क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा। यील्ड मतलब प्रोडक्शन। ये बहुत सारे एक्टिविटीज से किया जाता है। तो उसमें टूल्स कौन से यूज किए जाते हैं, एक तो ये हू, फ्लो
हु एंड कल्टीवेटर। अभी मैं फ्लो बताती हूँ आपको कहाँ पर। ये जो देख रहे हैं हम, ये है फ्लो। उसी के साथ नेक्स्ट है हमारा ये हु, ये भी देख रहे हैं आप। एंड नेक्स्ट ये दिस वन, दिस कल्टीवेटर। तो ये तीनों के मदद से हम सॉइल हमारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हम जो नांगर भी करते हैं ये तीनों के हेल्प से अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो। ये हमें क्यों यूज में लाना है, क्योंकि हमें मिट्टी ऊपर नीचे करनी है। जो हमारे सॉइल के बिग क्लम्प्स है उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। जो जमीन में जंगली पेड़ पौधे उगे हैं उनको हटाना है। तो पहले के समय में हम ये यूज में लाया करते थे। और ये जो फ्लो हुआ करता था वो स्पेशली वुडन का बनाया जाता था। उस टाइम पे क्या यूज में लाया जाता था पहले के जमाने में? देखो यहाँ पर पिक्चर है, इस पिक्चर में देख रहे हैं वी आर यूजिंग टू बुल्स। देर इज अ वन पर्सन यूज टू कल्टिवेट हिज लैंड। और ये देख रहे हैं ये हमारा ये फ्लो है। ये देखो, ये मैं जो बता रही हूँ ये डायग्राम ये यहाँ पर है। ये हमारा शाफ्ट है, ये देखो ये शाफ्ट है। इसका ये जो हिस्सा है वो इसका लोहे का है। इट इज मेड अप ऑफ आयरन। आयरन का क्यों बना है? मतलब ये इजीली जमीन के अंदर से जा सके। ये बीम है, ये बीम सपोर्ट करती है ये बुल्स को और ये शाफ्ट को, मतलब ये इजीली ड्रैग कर सके। और ये हमारा फ्लो शाफ्ट है, इसे फ्लो शेयर कहा जाता है। सो ये इस प्रकार का फ्लो हम फ्लोइंग के लिए, मतलब मिट्टी ऊपर नीचे करने के लिए, नांगरनी करने के लिए यूज में लाते हैं। मैंने आपको बताया अभी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी आवर हु। इन द सेम वे ये जो फ्लो एक्टिवेट करने वाला है, ये जो फ्लो काम करने वाला है उसी टाइप में वो भी करता है। फर्क इतना ही है कि इसके जो ये बॉडी पार्ट्स है ये टोटली किससे बनी गई है? इट इज मेड अप ऑफ आयरन। सेम एक्टिविटीज डन बाय हु आल्सो। फ्लो की जैसे काम करता है पर ये पूरी की पूरी एक्टिविटी सेम उसकी तरह, सिर्फ इसकी बॉडी पार्ट जो है पूरे आयरन के बने हुए हैं। यहाँ जो बेंड प्लेट दिख रही है आपको, ये वीड वो जंगली जो झाड़ पेड़ पौधे रहते हैं उनको निकालने में इजी जाता है। दिस इज आवर हैंडल ग्रिप, दिस इज आवर बीम। और ये रॉड ये पूरा आयरन का बना होता है। और इसमें भी एनिमल्स को यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी आवर कल्टीवेटर। ये देखो ये ट्रैक्टर है and this person is a driver of this tractor. Nowadays we are using such types of machinery for crop cultivation in the respective field. So ये जो है इसको क्या कहा जाता है? ये पोर्शन बता रही हूँ मैं आपको। कल्टीवेटर, दिस इज यूज टू कल्टीवेट द लैंड। इससे क्या होता है? कम लेबर में, लेबर मतलब मैन पावर, और कम समय में हम ह्यूज नंबर एरिया कल्टीवेट कर सकते हैं और वेरियस टाइप ऑफ एक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ टू sow the seed in the field or which kind of seeds are necessary for sowing seed in the field. तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा सीड है गुड क्वालिटी का है क्या, क्लीन है या हेल्दी है। देख रहे यहाँ कुछ तो डायग्राम्स भी है। देखो इस डायग्राम में बता भी रहे हैं कि फनल है। यहाँ पर देखो आगे मैं बताने वाली हूँ। फनल है, फनल में से सीड डाला जा रहा है। तो कोई भी यूं ही हम देख के, मतलब बिना देखे अगर कोई भी सीड कल्टीवेट करेंगे और मनचाहा अगर हमें क्रॉप नहीं मिलेगा, इट विल बी वेरी सैड थिंग। मतलब इतनी सारी मेहनत करेंगे और आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। बट अ फार्मर इज दैट मच क्लेवर हाउ टू कल्टीवेट हिज लैंड एंड हाउ टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन। तो वो क्या करेगा? सीड अच्छी क्वालिटी के लेगा, क्लीन लेगा और हेल्दी लेगा। तो एक सवाल आता है ये सारी चीजें कैसे होगी? तो मैंने एक दिन मेरी मम्मी को देखा है। देखो डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स में बताया गया है कि मम्मी ने क्या किया
कि ग्राम सीड कोई भी दाल हो, वो सीड को बर्तन में पानी में डाला। थोड़े समय के बाद जिनका वेट हैवी है, ज्यादा है, वो सिंक मतलब डूब गए, नीचे की सतह में आ गए, और जिनका वेट कम है वो ऊपर पानी की सतह पे फ्लोट करने लगे। तो ऐसा क्यों? मुझे भी मतलब सवाल आया, ऐसा क्यों? तो फिर आप ये करके देख सकते हैं घर पे। बहुत अच्छी बात है। आप अगर करके देखते हो तो आपको क्या करना है, एक बेसन में पानी लेना है। पानी लेते समय कोई भी लो, आप सीरियल लो, सपोज फॉर एन एग्जांपल वीट। तो वीट लेनी मुट्ठी भर, पानी में डालनी है। थोड़ी देर बाद देखना है, जिनका वेट ज्यादा होगा वो पानी में सिंक करेगी, और जिनका वेट कम होगा दे यूज टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ऐसा क्यों? बिकॉज जो डैमेज सीड होते हैं वो वीक हो जाते हैं, बीच में से मतलब अंदर से हॉलो हॉलो हो जाते हैं, और उनका वेट जो है वो कम होता है। कम वेट होने के कारण वो पानी की सतह पे फ्लोट करना शुरू करते हैं। तो इससे हमें ध्यान में क्या आएगा कि जो प्रॉपर वे में सिंक कर रहे पानी में, दे आर द गुड क्वालिटी सीड एंड वी हैव टू यूज दैट ओनली। जो ऊपर फ्लोट कर रहे वो नहीं यूज करनी, जो पानी में सिंक हुए वो यूज करने। तो ये टेक्निक हमारे लिए अच्छी है कि हम गुड क्वालिटी की सीड्स क्या है वो ध्यान में ला सके। ये 2 पैराग्राफ में तो वही बताया गया है। तो टूल्स भी होनी चाहिए। सीड अगर सो करना है, सोइंग करनी है फील्ड पे, तो ये देखो, ये इस डायग्राम में फनल है, यहाँ पर सेम process is doing, but difference is here we are using the funnel. With the help of this funnel, one person is used to put seed in this. Slowly it start coming down and it get enters into the soil. ये आगे चलता जाएगा, और ये स्टेप बाय स्टेप या सो होते चलेगा। तो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर एक फनल का यूज किया गया है। हम यहाँ पर 2 to 3 फनल्स का भी वेरियस क्रॉप के सीड का यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता रही हूँ। यहाँ पर एक फनल बताया गया है फॉर सोइंग सीड। एट द सेम टाइम वी कैन यूज 2 to 3 फनल, और उन फनल्स में हम अलग अलग वैरायटी के सीड्स डाल सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड था। nowadays we are using seed drill। ये देखो, ये सीड ड्रिल है। यहाँ से सीड डाला जाता है, और यहाँ से ये देख रहे क्या आप, ये जमीन पे ड्रिल होती है, और जमीन ड्रिल होते समय सीड्स भी इजीली अंदर जाते हैं। दिस आर 2 डिफरेंट मेथड्स। Nowadays mostly we are using the below one, seed drill। इससे भी क्या होता है, कम समय में लार्ज अमाउंट ऑफ सीड सो होती है, और हमारा मैन पावर भी बचता है। अभी वन क्वेश्चन इज रे, देखो, what he is telling, there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bag. Why are they kept like this? तो ये जो ब्लू कलर के डायलॉग बॉक्स का जो आंसर है, आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, मुझे फीडबैक आप फिर से करोगे। मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे फीडबैक करोगे कि क्यों लगता है ये। मेरे सपोज घर के 5 छोटी सी नर्सरी है, वहाँ पेड़ पौधे हैं जहाँ से लोग परचेज करते हैं। तो वहाँ पर जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें स्मॉल बैग्स में क्यों रखा जाता है, इसका आंसर आप मुझे रिप्लाई व्हाट्सएप पे फिर से करोगे। एंड होप ऑल आर गेटिंग एंड एंजॉयिंग द लेसन। फॉर टुडे this much is very good and sufficient for one alone. If anyone is having problem regarding any concept related to this chapter, you can question me on the respective WhatsApp group. Thank you student, have a nice day। करो बंद।